Good morning everyone. How are you all? So today we are going to start our copy work. So first of all, the first topic that we are going to do today is difficult words from the lesson. Okay. So the same lesson we are going to do, that is the lesson 4, 3 friends and a boot. Okay. So from this we are going to do the copy work, and the first topic of the lesson that we are going to do in our copy is difficult words. Okay, so first of all you have to put the heading, that is lesson 4, 3 friends and a boot. Then put the heading difficult words and then start writing like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Like this 15 words we are going to do. Okay. So one by one I will write down the words, and then I will explain the meaning, and then we'll see what is the correct meanings and what is the correct pronunciations. Okay, so one by one I am going to write down. The first word is shell. What is it? Shell. Okay, but before this we start writing, I want everyone to take out your copy and start writing with मैम, है ना। मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग सुनते हो या नहीं ये मैम को नहीं पता है। I want everyone to note down this along with me, okay? Because as I have told you many times, you have to improve your writing speed and handwriting on the same time. So it will be better for you if you start practicing it right now. As the schools are about to reopen, and that time you will be having a lot of pressures regarding the writing work, है ना। बिकॉज जब स्कूल चल रहे थे आप लोग के, दैट टाइम यू आर राइटिंग वेरी वेल, है ना। आप लोग बोर्ड से देख के मैम के साथ जितना टाइम मिलता था उतने टाइम में आप लोग लिख लेते थे, वो भी अच्छे हैंड राइटिंग में, स्पीड भी अच्छी रहती थी। बट नाउ दैट यू आर एट होम एंड यू आर नॉट कंप्लीटिंग योर वर्क एवरी डे इन द लिमिटेड टाइम, you are having very slow speed, है ना, very low speed, you are not writing in a proper way, है ना। So I want everyone to do the practice every day and try to write along with your ma'am. जैसे जितनी देर में मैम लिख रही है, मैम का अगर 15 मिनट का वीडियो है, उस बीच में आपका भी 15 मिनट में ये लिख के हो जाना चाहिए। इट्स नॉट दैट टफ, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द वर्ड्स ओनली, है ना। बहुत ईजी है बेटा, आराम से आप लोग धीरे धीरे मैम के साथ लिख सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस। So now the first word that I have given is shell. I hope you all are having your class or copy with you. Take out your copy, take out new page, new fresh page, write down the headings, keep your pencil, eraser, whatever you need with you, and fully concentrate on the video, okay? And start writing from the heading. First put the heading, lesson 4, 3 friends and a boot, and then write down the topic, difficult words, and then start writing one by one the words. Okay, I am giving you 1 minute. All of you take out your copies and write down the headings. Done everyone? Yes. Now the first word I have already written, shell. Shell means छिलका, ऊपर का जो भी पार्ट होता है किसी भी फ्रूट का, या फिर जो पर्ल्स होते हैं हमारे मोती के भी ऊपर शेल होता है। वैसे ही कोई फ्रूट्स होते हैं जो बहुत नट टाइप के, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके ऊपर भी उनके छिलके शेल टाइप होते हैं, राइट, थोड़ा हार्ड और टफ होता है, ठीक है। सो शेल मीन्स द अपर पोर्शन ऑफ अ फ्रूट, ओके, यस, द स्किन ऑफ अ फ्रूट। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज वाइज. व्हाट इज इट? Wise. Wise means sharp, clever minded, है ना, समझदार. The parrot was wise, है ना. In the lesson who was wise? Yes, the parrot was wise, है ना. Now the next word is believe. What is it? Believe. Believe means भरोसा करना किसी पे, है ना, भरोसा करना. Believe means किसी का भरोसा करना, ओके, कि हाँ सामने वाला पर्सन जो भी हमें बता रहा है वो सच है, सही है, ओके। देन रूडली. व्हाट इज इट? रूडली. रूडली मीन्स टू बी टफ, टू बी क्रूअल टू समवन, है ना.
किसी से बुरी तरह से बात करना, गुस्से से, सख्ती से बात करना, उसे हम क्या कहते हैं, रूड पर्सन, है ना। सो द नेचर इज कॉल्ड रूडली, है ना। किसी का सख्त होना, गुस्से में बात करना, बुरी तरह से बात करना, उस नेचर को हम क्या कहते हैं, रूडली। ओके, यस। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज रिमेंबर। रिमेंबर मीन्स याद रखना, है ना। रिमेंबर मीन्स टू कीप इट इन योर माइंड। टू रिमेंबर मीन्स याद रखना, जो हुआ था या हो रहा है उसे याद रखना। रिमेंबर मीन्स जो हो गया है याद करना कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, राइट। ओके, टू कीप इट इन योर माइंड, है ना। रिमेंबर मीन्स याद रखना। यस, नेक्स्ट वर्ड इज हर्ड। हर्ड मीन्स सुना था मैंने, आई हर्ड, है ना। या फिर जैसे लेसन में हमने पढ़ा कि द थ्री फ्रेंड्स वर डिस्कसिंग अबाउट द वुड एंड वन ऑफ देम picked it up, है ना, and was holding it in his hand. That time suddenly he heard the sound of gun, है ना, आवाज आई गोली की, है ना। So heard, okay, सुनाई देना। Yes, next word is hunting. Hunting means शिकार करना, है ना। हंटिंग मीन्स शिकार करना। जब एनिमल्स को अटैक करते हैं, गोली मारते हैं, उन्हें कैच करते हैं, उन्हें केज में बंद करते हैं, दीज ऑल थिंग्स वी कॉल इट हंटिंग, है ना। हंटर्स डू हंटिंग। कौन करता है शिकार, शिकारी शिकार करता है, ठीक है। यस, एंड देन नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मीन्स कुछ अलग, कुछ नया, जो आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, है ना। वी कैन यूज इट विथ सम पर्सन ऑल्सो। सडनली, अब जैसे स्ट्रेंज तो आपके ट्रैवलिंग का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोग जब कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो ट्रेन में या बस में, तो कोई ऐसा पैसेंजर आपके बाजू में बैठा होता है जिसे आप कभी नहीं मिले, कभी नहीं देखा, ना जाना, उसका नाम नहीं पता। सो दैट पर्सन इज अ स्ट्रेंजर, है ना। वो पर्सन कौन है, स्ट्रेंजर है। सिमिलरली हमारे लेसन में थ्री फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने बूट देखा जब फर्स्ट टाइम, तो इट वाज स्ट्रेंज फॉर देम, राइट, बिकॉज दे नेवर सॉ सच अ थिंग। उन्होंने कभी भी एक बूट नहीं देखा था, ना इंसानों को पहना हुआ देखा था, तो वो बूट उन लोग के लिए क्या था, स्ट्रेंज था, है ना। सो यस, जो कभी नहीं देखा, सुना, जाना, उस चीज को हम स्ट्रेंज कहते हैं। यस, नाउ नेक्स्ट इज रबिश, है ना। रबिश मीन्स बेकार बातें, है ना, फालतू की बातें, इधर-उधर की बातें, कुछ भी बना के कहना इज कॉल्ड रबिश, है ना। कि आपको कुछ पता नहीं है चीज़ के बारे में और आप ज़बरदस्ती अपने मर्जी से कुछ भी बोल रहे हो, सो इट्स अ रबिश थिंग, राइट। कुछ भी अगर आपको नहीं पता, व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग और टेलिंग समवन अबाउट समथिंग, यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट फर्स्ट, है ना। एटलीस्ट यू शुड नो एवरीथिंग genuinely, truly about that, and then you should tell them, otherwise it will called as a rubbish, है ना। जब आप किसी को कोई चीज़ के बारे में बता रहे हो, समझा रहे हो, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, सो आपको उस चीज़ के बारे में पहले पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उसके बारे में नहीं बोल सकते, है ना। आपको नहीं पता, आप अपनी मर्जी से कुछ भी बता रहे हो, तो वो एक तरह से गलत हुआ कि आप सामने वाले को गलत नॉलेज दे रहे हो, है ना, गलत सीख दे रहे हो, गलत बातें बता रहे हो, है ना। अगर उसने आपका भरोसा कर लिया तो वो उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। सिमिलरली ऑल्सो आप जब ऐसे गलत बातें बताते हो तो सामने वाला पर्सन नेक्स्ट टाइम से आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, कहेगा कि ये तो फालतू बातें करता है, इधर उधर की बातें बना के बताता है, सो ही इज नॉट द ट्रस्टवर्दी पर्सन, है ना। सो रबिश इज फालतू बातें बना के कुछ भी बोलना जब आपको नहीं पता। ओके, यस, देन नेक्स्ट इज ब्रीज। व्हाट इज इट, ब्रीज, है ना। ब्रीज मीन्स ठंडी हवा, है ना। In the story or in the play, the three friends were talking about the cold breeze blowing, है ना, और जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था कि पॉन्ड का पानी बिल्कुल ठंडा होगा, राइट। अभी हमारे यहाँ भी ऐसा मौसम बन रहा है कि ठंडी ठंडी हवा बह रही है, राइट। cold breeze is blowing, right, so that we call breeze, है ना, ठंडी ठंडी हवा। Then the next word is suddenly. What is it? Suddenly. Suddenly means अचानक, है ना। अचानक से कुछ होना, अचानक से आपके हाथ से पेन गिर जाता है, पेंसिल गिर जाता है, अचानक से बारिश हो जाना, है ना, अचानक से धूप आ जाती है। सो जो भी चीज़ अचानक से होती है उस चीज़ को हम सडनली कहते हैं, राइट। यस, द नेक्स्ट इज मिडल। व्हाट इज इट?
middle. Middle means बीचों बीच. Okay, middle means center. जैसे कि स्टोरी में हमने पढ़ा था, जब वो तीनों फ्रेंड्स पॉन्ड की तरफ बढ़ रहे थे तो वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच से एक रास्ता था, उस पे से जा रहे थे और पॉन्ड भी उनका कहाँ था? द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, राइट? इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट. मिडल मीन्स सेंटर में, बीचों बीच होना. देन नेक्स्ट इज अराउंड. अराउंड मीन्स चारों ओर, है ना? जैसे कि जिस पाथ से वो लोग जा रहे थे उसके चारों ओर क्या था? ट्रीज. इज दैट क्लियर? What was around their path? Tree. Okay. Yes. The next is climb. Climb. Climb means चढ़ना. पेड़ पे चढ़ना, पहाड़ पे चढ़ना, दीवार पर, है ना? Monkeys climb on the tree. Bears climb on the tree. Yes. Yes. So climb means चढ़ना ऊपर. Okay. And the last word is together. What is it? Together. Together means साथ में, है ना? वो तीनों कैसे घूमते थे? साथ में. Three of them were walking together towards the pond, है ना? वो लोग क्या करते थे? Together means साथ में जाते थे, है ना? वो तीनों जब भी पानी पीने जाते थे साथ में जाते थे, right? So together means साथ में. So these were the 15 words I have written. Now I hope you all have written along with your ma'am, है ना? मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे ही मैम के साथ साथ लिखो, तो it will improve your writing speed and your handwriting as well. Okay? Yes. So now we'll move on to the question answers. Okay? Yes. And the question answers that remaining classwork copies are question answers only, and then we'll do the remaining part, whatever is remaining in our book. So these all things we'll do in our next class. We'll do the question answers also in the next class. Okay, till that, keep learning, keep understanding the difficult words I have given you today. Okay, so good day everyone.